Okay, my voice is clear, so let's start with our live session, I guess. First, I will start with the basics and my journey and my basic strategies for prelims as well as mains. Then, after I am done with that, I will take questions from the live chat. Any questions which you have regarding the preparation for the civil service examination, I will take that. So, starting with my introduction, my name is Deepak Meena. Uh, Also, one comment, if any of the issues arise in the live streaming, you can just comment it in the chat section so that I will know about it. So, starting with my introduction, my name is Deepak Meena. I have secured All India Rank 283 in Civil Service Examination 2023. So my journey till here, I have done my graduation BTech from IT Delhi in electrical engineering, and I graduated in 2021 from there. Thereafter, I prepared for civil service examination holistically. In my first attempt in 2022, I secured All India rank 777 and allocated Indian Revenue Services, Customs and Indirect Taxes. Then after I took EOL from that service and again prepared for civil service examination. This was my second attempt, and I have secured All India rank 283. And expecting Indian Administrative Service this time. So this was my basic journey. So the success of credit for my success, I would say, goes to my family. They have stood throughout my journey in my highs and the lows. So I would give credit to them and some of the friends who have helped me during the mains preparation as well as during the interview phase. So they also deserve some credit. Also, some of my mentors whom I was in regular touch with them throughout my journey. So for strategy, for the prelims, I would say let's start with the strategy that is the main concern for all of you. So we have seen that for GS1, it is slightly have become unpredictable. Uh, Pattern changes are there. Last year there were a different type of options given, so there was pattern change. So it have become slightly more tricky. Some more luck is involved, as well as it is tied without IC. So my strategy for prelims was solve as much as mock papers as you can. Simply in the last 2 3 months, in the first attempt, I from the February only I started preparing solely for prelims, because prelims nowadays is very tricky and you need to dedicate a lot of time to prelims so that you are able to clear it with ease. So I started around February dedicating wholly to prelims, and one thing I was focused on was solving more and more mock test papers. So that was the basic strategy that will help in your guesswork, how many questions you want to approach in examination, as well as how your guesswork is working out, as well as your strategy, how you will attempt the paper. So that will surely help. My personal strategy for attempting GS was that some people are like कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि शक्ति, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन टू। सब कुछ लोग होते हैं कि मतलब मल्टीपल राउंड्स करते हैं जैसे जीएस पेपर 1 में, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं क्या करता था कि एक ही राउंड में पूरा पेपर करने की पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करता था। मैं क्या करता था कि मतलब एक अराउंड 1 आवर 10 मिनट इस टाइम के अराउंड एक बार पूरा पेपर सॉल्व करना चाहता था। एक आवर 10 मिनट 15 मिनट के अराउंड एक बार पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ सवाल होंगे जिन्हें मेरे को डाउट होगा, तो मैं उन पर राउंड मार्क कर लेता था। उसके बाद मैं ओएमआर शीट भर देता था। ओएमआर शीट में भर दिया, जो परफेक्टली क्लियर थे उनको वापस चेक नहीं करता था। क्यों, मतलब आप चेक करने लगते हो तो फिर ऐसा तो होता है कि इन प्रीलिम्स यू विल फील दैट आई शुड गेट कुछ और थोड़ा चेक कर लेता हूँ। इस सवाल को लग रहा है कि थोड़ा इजी सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा और चेक कर लेता हूँ। डर लगता है ओएमआर भरते हुए, लेकिन वो सबके साथ होता है, वो डर होता ही है। तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है सवालों पे, तो ये चीज़ करो। फिर मैं ओमर भर लेता था। उसके बाद जो मेरे डाउसी क्वेश्चंस होते थे जहाँ पे मैं सर्कल मार्क करके रखा होता था, वहाँ पे भर लेता था। फिर मैं तो उसके बाद फिर उसको उन सवालों को वापस अटेम्प्ट करता था। वहाँ देखता था कि वहाँ की क्या गलती है, मतलब वहाँ क्या कर सकता हूँ, तो वो सवाल अटेम्प्ट करता था और फिर वो मार भर देता था। मैं ऐसा करता था, मतलब ऐसे मल्टीपल राउंड्स नहीं करता था पेपर के अंदर। और मतलब मैं दोनों अटेम्प्ट्स में अराउंड 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था दोनों राउंड में। मतलब कुछ लोग होते हैं जो वो लोग 100 पूरे अटेम्प्ट करके आते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है।
मैं 80 to 85 अटेम्प्ट करके आया था दोनों अटेम्प्ट में। तो वही बात होती है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि क्या आपके लिए वर्क करती है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। हर किसी के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं होती। मेरे कई दोस्त थे जो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते थे, तो उनके लिए वही वर्क करता था। मेरे लिए अपना क्या वर्क करता है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी कि आपको आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क करती है। तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कीजिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका गैस वर्क कितना वर्क करता है, तो आपको क्या से करना है, वो आपकी चीज़ आपको पता चल जाएगी। उसके अलावा मतलब मैं क्या करता था कि मैं मॉक टेस्ट तो करता ही था। तो मॉक टेस्ट के अलावा क्या होता है कि मॉक टेस्ट आप बहुत सारी कोचिंग से कर सकते हैं, किसी सारी कोचिंग से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट में कई सवाल ऐसे होंगे कि आपको नहीं आते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या करता था, उनमें से जो इन्फॉर्मेशन होती थी वही नोट्स में ऐड कर लेता था अपने, और इससे मेरे नोट्स की मतलब वैल्यू एडिशन भी हो जाता था नोट्स में। तो इस तरीके से मतलब प्रीलिम्स की मैंने ऐसे प्रिपेयर की थी GS1 के लिए, पेपर 1 के लिए। तो और CSAT के लिए मतलब CSAT की प्रिपरेशन के लिए मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग का है, तो उससे थोड़ी हेल्प हो गई थी मुझे। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर जो CSAT के लिए बुक्स वगैरह आती है उसके लिए, तो वो बुक उस बुक से प्रिपेयर किया था। उस बुक से मतलब सवाल सॉल्व कर लेता था, वहाँ पे फॉर्मूले वगैरह थे, बेसिक्स वगैरह। तो वहाँ से आई ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस एंड some basic reasoning from there that helped me a bit. But CSAT you need to dedicate a lot of time in especially the last year। CSAT बहुत हार्ड था, तो आपको स्पेशली डेडिकेट करना पड़ेगा बहुत सारा टाइम CSAT के लिए। तो यू नीड टू डेडिकेट लॉट ऑफ टाइम, तो आप डेडिकेट कीजिए उस टाइम को। और मतलब CSAT को लाइटली मत लेना भी। लोग होते हैं, मैंने देखा है कि मतलब इवन मेरे दोस्त फ्रॉम IT आर नॉट एबल टू क्लियर CSAT। सिंपल रीज़न मतलब ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लाइटली लेते हैं CSAT को। यू शुड नॉट टेक CSAT लाइटली। CSAT को लाइटली लेने से बहुत दिक्कत हो सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग 2-3 ईयर लास्ट 2-3 years इफ यू लुक एट द पेपर्स। सो डेडिकेटेड लॉट टाइम, डू लॉट ऑफ पेपर्स, प्रैक्टिस फॉर रीजनिंग, मैथ्स। सो इन रिसेंट वी हैव सीन दैट मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। मैथ्स वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। वो PNC नंबर सिस्टम, वो वाले सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उनके सवालों की और प्रैक्टिस कीजिए। ESC के लिए जो आती है CSAT की बुक, ESC के अंदर CSAT का अलग से पेपर होता है, तो वहाँ पे मतलब मैंने उसके लिए बुक मंगाई थी और वहीं से सवाल सॉल्व किए थे, और उसके लिए मैंने CSAT की डेडिकेटेड प्रिपरेशन की थी। रिगार्डिंग मीन्स, नाउ कंसिडरिंग मीन्स के लिए सारे पेपर्स के लिए अपन बात कर लेते हैं। उसके अंदर प्रीवियस ईयर का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें बात कर लेंगे, और उसके बाद अपन बात कर लेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना होता है। चलो पहले ये बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना होता है। समवन रोट, किसी ने पूछा था ये सवाल। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कि इफ़ यू लुक एट टॉपर्स मार्क्स इन, आप किसी भी ईयर की लिस्ट उठाइए, टॉपर्स के मार्क्स देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल से बहुत कुछ डिसाइड होता है। ऑप्शनल डिसाइड्स योर रैंक्स अ लॉट। ऑप्शनल में अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आपको बहुत हेल्प होगी उस चीज़ से। तो ऑप्शनल आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स अगर आप ला सकते हो, आप हाई स्कोर कर सकते हो ऑप्शनल में, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि GS पेपर्स में ऑलमोस्ट सबके एवरेज मार्क्स आते हैं ऑन एवरेज इफ आप देखोगे। लेकिन ऑप्शनल यू कैन मेक ए डिफरेंस। ऑप्शनल यू कैन स्कोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बंच। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे। पिछले साल के उस एवरेज मार्क्स देखिए उस ऑप्शनल के कितने आ रहे हैं। उसके अलावा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने जा रहे हैं ऑप्शनल में, वेरिएशंस कितना है मार्क्स का, तो वो ऑप्शनल देखिए। क्योंकि मतलब अल्टीमेटली तो आपका मेन एम तो मार्क्स लाना है ऑप्शनल के अंदर। ऑप्शनल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शनल के मार्क्स देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे ऑप्शनल के मार्क्स आ रहे हैं। कई GS के ऑप्शनल है कि मतलब हाईएस्ट ही 290 जाता है, हाईएस्ट 290 जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है मार्क्स के अंदर। तो दीज आर रिस्की ऑप्शनल्स इफ़ यू वांट टू टेक। तो मतलब अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छा गया, वरना फिर सब खराब हो जाएगा। आप बाकी भी मेहनत कर लिए लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से सब खराब हो गया, आपकी रैंक बिगड़ गई। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ये ध्यान रखिए कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो देखिए। प्रीवियस ईयर का डेटा एनालाइज कीजिए कि हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं, वेरिएशंस कितने हैं, और एवरेज मार्क्स कितने आते हैं इस ऑप्शनल के अंदर। और जैसे कुछ ऑप्शनल है, जैसे मैथ्स है,
जी, या फिर मतलब इवन पॉलिटिकल साइंस है, PSIR, उनमें कंटिन्यूसली ऑन एवरेज हाई मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शंस मतलब लोग ज़्यादा लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे ऑप्शन में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी की मार्क्स, मैं तो बोलता हूँ कि सबसे नंबर वन पे होनी चाहिए कि मार्क्स कितने आए हैं उस ऑप्शन में। सेकंड पे आई बिलीव होना चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका कितना है इस ऑप्शनल में। मेरा जैसे मतलब आई वाज लाइक GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे ये सब तो पढ़ना ही है। तो आई वांटेड सम टेक्निकल ऑप्शनल जिससे मेरा माइंड फ्रेश होता रहे साथ साथ। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था अपना ऑप्शनल, जो मेरा बीटेक का बैकग्राउंड था। सेम ऑप्शनल आई चूज़। तो आपको सेकंड पे इंटरेस्ट होना चाहिए कि कितने मार्क्स आपका इंटरेस्ट कितना है ऑप्शन में। GS आपको कंटिन्यूसली पढ़ना ही है, यू हैव टू स्टडी GS कंटिन्यूसली, बट ऑप्शनल के अंदर आपका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट, थोड़ा तो इंटरेस्ट होना चाहिए, आप तभी पढ़ पाओगे इस ऑप्शनल को अच्छे से और मार्क्स ला पाओगे। तो इंटरेस्ट भी सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। और थर्ड पे सिलेबस, आई वुड से सिलेबस रखो, क्योंकि मतलब सिलेबस कई कई ऑप्शनल का काफ़ी छोटा है। कई ऑप्शनल का जैसे टेक्निकल ऑप्शनल्स, मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग ऑप्शनल का बहुत ही बड़ा सिलेबस है। उनको कवर करने में आपको 4-4, 5-5 महीने लग जाएंगे, एज़ कम्पेयर टू सम छोटे जैसे एंथ्रोपोलॉजी, उसको आप इवन 2 मंथ्स में कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने की है। तो फर्स्ट आई वुड से कि आपको मार्क्स देखने हैं कि मार्क्स कितने आते हैं उस ऑप्शनल में। सेकंड आपकी प्रायोरिटी इंटरेस्ट होना चाहिए, और थर्ड मतलब सिलेबस कितना है उस ऑप्शनल का। तो इन सब को ध्यान में रखिए, आप अपना ऑप्शनल चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल सूट करता है। हर किसी का अलग अलग होता है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखिए, आप ऑप्शनल चूज़ कीजिए। उसके अलावा अपन मेंस के बाकी पेपर्स की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। फर्स्ट पेपर ऐसे का होता है। तो ऐसे के अंदर आप देख रहे होंगे कि पहले थोड़े सिंपल ऐसेज आ जाते थे, कि मतलब पेट्रियार्की पे आ जाता था, टेररिज्म पे आ जाता था, टेक्नोलॉजी पे आ जाता। आजकल यू हैव सीन दैट फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं 2 साल से। ओनली 4 ऑप्शन में ओनली फिलोसफिकल एसेज होते हैं। तो वहाँ आपका ऐसे सबसे पहले चीज़ तो होनी चाहिए कि आपको एसेज समझना है, बोलना क्या चाह रहा है टॉपिक। फर्स्ट आपको चार चार टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनके अंदर से आपको समझ में कौन सा आ रहा है। समझ में आप जो टॉपिक पे लिखोगे वो आप समझ में आना चाहिए, आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। फिलोसफिकल एसेज में आप तभी लिख पाओगे मल्टी डायमेंशनल एसेज, आपको वो ढंग से समझ में आएगा। अगर आपको ढंग से वो समझ में आता है, ढंग से समझ में आया, उसके बाद कंटेंट होना चाहिए आपके पास। कंटेंट ओनली सिंगल नहीं होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। उसके बाद ऐसे का अपन पूरा देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। मैं कैसे लिखता था ऐसे का, मैंने एक टॉपिक चूज़ कर लिया। मान लो कि मेरे को ये टॉपिक समझ में आ गया। जैसे मैंने 2021 का ऐसे मेरे को याद आ रहा है, वो लिखा था कि शिप्स आर सेफ इन द हार्बर, शिप इज़ सेफ इन द हार्बर, बट दैट इज़ नॉट वॉट शिप्स आर फॉर। तो ये मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, ये क्लियर है एकदम। तो उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करो इसके ऊपर। रविंद्र, उस पर भी बात करेंगे अपन, अभी मेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे भी आएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। क्वेश्चन फ्रेम कीजिए ऐसे के अंदर कि आपने मतलब जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस कीजिए। यहाँ पे शिप्स के क्या मीनिंग है, शिप सेफ क्यों होता है हार्बर में, वाई मतलब सेफ्टी ज़रूरी, हमेशा सेफ्टी ज़रूरी क्यों नहीं है, हमको रिस्क भी लेना ज़रूरी है, इस टॉपिक का ये मीनिंग है। तो रिस्क लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है, हम इस टॉपिक को कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट, कैसे नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सवाल फ्रेम कीजिए टॉपिक से, जो आपके मन में सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। 8-6-7 सवाल फ्रेम कीजिए इस टॉपिक से, जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है। तो आप इस सवाल को फ्रेम कीजिए, इन सारे सवालों को फ्रेम कीजिए। उसके बाद फ्रेम करने के बाद आप इन सवालों के आपको आंसर देने हैं। आप इस सवालों को फ्रेम कर लिया, आपका जो ऐसे होगा ना, इन्हीं सवालों का आंसर होगा जो आपने फ्रेम किया है। तो आप फ्रेम कीजिए, इन सवालों के आंसर फ्रेम कीजिए। क्या होगा, आपके सवाल है उसके कुछ पॉइंट्स होंगे कि ये पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है मेरे पास इस सवाल को, इस शिप सेफ क्यों होते हैं हार्बर में, इसके 1 2 3 4 पॉइंट है। रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है, 1 2 3 4 पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको फ्रेम करना है। उसके बाद आपने पॉइंट्स फ्रेम कर लिए, उसके बाद आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए। एग्जांपल्स कैसे होने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स होने चाहिए। ये आप पॉइंट्स ओनली लिखेंगे नहीं आप ऐसे में, इनको सपोर्ट करने के लिए साथ में यू हैव टू गिव एग्जांपल्स टू। तो यू कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम सोसाइटी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, फ्रॉम इवन फ्रॉम जोग्राफी,
You can take example from medieval, post independence, any field you can take examples. So take examples from any of those fields, and you write those examples in those points to support your argument. और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मतलब ऐसे आप स्टैटिक पोर्शन से लिखोगे तो आपके एग्जांपल्स कॉमन होंगे, सब लोग वही लिखेंगे, तो आपको थोड़े यूनिक एग्जांपल्स भी कलेक्ट करने होते हैं। तो यूनिक एग्जांपल कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ पिछले साल के टॉपर देखिए ऐसे में जिनके हाई मार्क्स आए हैं, उनके टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए, उन्होंने बहुत सारे यूनिक एग्जांपल्स लिखे होंगे। मॉक टेस्ट ऐसे के लिए एग्जांपल्स के लिए वही बता रहा हूँ कि आप पिछले साल के टॉपर्स के पास जाइए, उनके मार्क्स देखिए किसके कितने मार्क्स हैं। उसके अलावा उनके ऐसे नोटबुक्स देखिए, वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उन्होंने सब डाल रखी होंगी, कोचिंग की नोटबुक, कोचिंग की वेबसाइट्स पे जाइए, उनकी ऐसी नोटबुक्स पढ़े होंगी। तो वो सब चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट कीजिए, वो एग्जाम्पल्स एक साथ मैंने कलेक्ट किए थे पिछली बार। मैम AI4 थी श्रुति मैम, हाँ, तो उनके एग्जाम्पल मैंने कलेक्ट किए थे, तो उनके एसेस काफ़ी अच्छे होते थे। तो उनके टेलीग्राम चैनल पे गया था मैं, तो पंकज सीसा स्ट्रैटेजी के मैंने पीछे बोल दिया है, तो आप वो रिवाइंड करके देख लेना जब लास्ट में वीडियो के लिए। तो वो बात है कि आप टॉपर्स की नोटबुक से यूनिक एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हैं, या इवन न्यूज़पेपर में कोई यूनिक एग्जाम्पल आता है वो कलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर कोई बुक पढ़ी है आपने, आप कोई बुक पढ़ते हैं वहाँ से यूनिक एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जहाँ से भी यूनिक एग्जाम्पल मिल जाए वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास बेसिक्स स्टैटिक के अंदर अगर आप ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट भी नहीं करेंगे तो भी आपके पास हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, और इन सब से पोस्ट इंडिपेंडेंस, इवन इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, इन सब से आपके पास इनफ एग्जाम्पल होंगे ऐसे लिखने के लिए। लेकिन आप अपने पॉइंट्स को इन सारे, you have to support your arguments with these examples, then your essay will make the impact। उसके बाद ये आपने ये सारा कलेक्ट कर लिया, आंसर लिख लिया, उसके बाद पॉइंट लिख लिया, उसके अपने आप एग्जाम्पल कलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, यू हैव टू स्टार्ट एन ऐसे विथ एनेक्डोट। मैं जनरली एनेक्डोट से स्टार्ट करा, यू कैन स्टार्ट विद ए पोएम, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी है, बट जनरली आई स्टार्टेड विथ एनेक्डोट, एनी स्टोरी रिलेटेड विच प्रूव, जिससे आपका जो टॉपिक है वो कोर प्रूव हो जाता है। ऐसी स्टोरी से स्टार्ट कीजिए आप ऐसे को, तो ऐसे एनेक्डोट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप लिंकेजेस बनाइए, लेकिन आपको वही जो आपने लिख दिया है ना, वो 6-7 सवाल, उन्हीं के आंसर देने हैं आपको। तो वैसे ही धीरे धीरे चलिए, लिंकेजेस बनाइए और आंसर देते चलिए उन सारे सवालों के, कनेक्शन बैठाइए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि रैंडम जंप है। तो ऐसे आप पूरे ऐसे को बनाइए। उसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड होना चाहिए आपके पास। जब आप सारे सवालों के आंसर दे देंगे तो इनफ कंटेंट हो जाएगा आपके पास एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स के साथ। उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड पे ध्यान देना है लास्ट में, यू हैव टू राइट ए वे फॉरवर्ड, एंड लास्ट में एंड आपको उसी एनेक्डोट से करना है, कनेक्ट करते हुए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। उससे एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि आप जब ऐसे पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में आपको जगह लगेगा कि ऐसे कंप्लीट हो गया है पढ़ने के बाद, जब आप सेम एनेक्डोट पे एंड करते हैं। जैसे कोई बिल गेट्स की स्टोरी पे आपने स्टार्ट किया एनेक्डोट, एंड करेंगे कि दिस इज़ हाउ बिल गेट्स डिड इट, तो एवरीवन शुड डू इट लाइक दिस, और बिल गेट्स वगैरह। तो ऐसे कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एंड हो गई है, तो टोटली ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ऐसे करना चाहिए कंप्लीट। उसके अलावा GS1 के लिए मतलब GS1 के लिए तो कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजी है नहीं है, मतलब उनके अंदर तो जनरली वही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, उसके लिए तो स्टैटिक कंटेंट होता है ऑलमोस्ट, तो आपको वही याद रखना पड़ेगा, वहीं से सवाल आते हैं, आप वही अटेम्प्ट कीजिए। सोसाइटी में थोड़े ऐसे करंट डायनेमिक्स टाइप सवाल आ जाते हैं, लेकिन वो हैंडल हो जाते हैं, अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो वो हैंडल हो जाते हैं। GS1 में इश्यूज़ वहाँ नहीं आएंगे। आप स्टैटिक को मोर एंड मोर रिवाइज कीजिए GS1 के लिए, जितने आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वो कीजिए, तो वहाँ से GS1 कवर हो जाएगा। GS2 के अंदर करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, लेकिन GS2 के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में GS2 के अंदर आप पॉलिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज लिखिए। मेरे पेपर 1 और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने वैल्यू एडिशन किया था। डिफरेंस ये था कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 50 मार्क्स पड़ गए थे GS1, GS2, GS3, GS4 में ओनली, बस वैल्यू एडिशन की वजह से। तो वैल्यू एडिशन मेरा यही था। GS1 के अंदर जैसे मैंने सोसाइटी के अंदर और एग्जाम्पल्स, डेटा लिखना कलेक्ट किया, सोसाइटी से रिलेटेड डेटा, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया मैं। ये बाद में बताऊँगा कि मैंने वैल्यू एडिशन और डेटा कलेक्शन कहाँ से किया था।
लेकिन मैंने GS1 के लिए तो वैल्यू एडिशन के लिए एग्जांपल्स कलेक्ट किए, और एग्जांपल्स कोई सोसाइटी के लिए कोई मतलब इनिशिएटिव है कहीं पे अच्छा, वो सारे चीज़ें कलेक्ट की, एंड डेटा कलेक्ट किया सोसाइटी के लिए। GS2 के लिए मैंने केस लॉज बहुत सारे कलेक्ट किए, पॉलिटी के लिए आर्टिकल सारे याद कर लिए, सस्टेनेबल SDG गोल्स सारे याद कर लिए, वो तो उंगलियों पे होने चाहिए, आपके कंक्लूजन में बहुत हेल्प करेंगे SDG गोल्स, सारे SDG गोल्स आप याद कर लीजिए। और उसके अलावा उसके बाद सोशल जस्टिस में आप मतलब एग्जाम आपके पास डेटा होना चाहिए, आप कोई सोशल जस्टिस से जमा जनरली पॉवर्टी सोसाइ वो इसी रिलेटेड आते हैं, स्कीम्स वगैरह रिलेटेड, तो आपके पास इनफ डेटा होगा ना सोसाइटी से रिलेटेड, तो आप वो सवाल हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़े जर्नलिस्टिक टाइप भी पॉइंट्स लिख सकते हैं सोशल जस्टिस के अंदर, तो वही लिखने होते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास डेटा होगा ना तो थोड़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग लगेगा वो आंसर सोशल जस्टिस का, एज़ कम्पेयर टू आप जनरलिस्टिक पॉइंट लिखेंगे ओनली। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे को नहीं लगता कि आपको स्पेसिफिक कोई पढ़ने की ज़रूरत है, स्टैटिक के नोट्स होने चाहिए, मतलब करंट अफेयर्स मोर देन इनफ लगा मेरे को दोनों बार, कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस प्योरली कवर हो जाता है अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं पूरा तरीके से। और आप करंट अफेयर्स का आपका सोर्स कोई भी हो सकता है, वो मैं आगे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए। उसके अलावा GS3 के अंदर, GS3 में इकोनॉमी में आपको डेटा बहुत सारा कलेक्ट करना है, डेटा आप बहुत सारा कलेक्ट कीजिए। GS साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सब के अंदर बहुत सारा डेटा होना चाहिए आपके पास। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है इंडिया के अंदर, इंक्लूसिव ग्रोथ के डेटा कुछ, उसके अलावा इनइक्वालिटीज़ के डेटा, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं, इंडिया की कितनी मैन्युफैक्चरिंग का कितना प्रोडक्ट, कितना परसेंटेज है GDP का, सारे डेटा आपके पास होने चाहिए, ये एग्ज़ाम में यूज़ होंगे आपके, सारे डेटा आपने रख लिए। उसके अलावा आप कमिटीज़ की रिकमेंडेशन, सिक्योरिटी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मधुकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, तो सारी कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस आपको याद होनी चाहिए जो आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे और बताएंगे कि ये करना है। सेम चीज़ मैं GS2 के लिए भूल गया था एक चीज़, कि सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन, सरकारी कमीशन और इन सारे कमीशंस की रिकमेंडेशन, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो सारी भी याद होनी चाहिए, आप कंक्लूजन में वो लिखेंगे, उससे बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत मार्क्स एनहांस होते हैं उसकी वजह से। GS3 के अंदर, GS3 पे आते हैं वापस से अपन, तो आपके पास डेटा होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कमिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, और आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। GS4 की स्ट्रैटेजी की बात करें, GS4 के अंदर ओनली एग्जाम्पल्स ही आपको बचाएंगे, आपके पास एग्जाम्पल्स, कोट्स, ये सब होना चाहिए GS4 के अंदर। जितने ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स है, जितने ज़्यादा आपको कोट्स आते हैं, उतने अच्छे मार्क्स आपके GS4 में आने वाले हैं। तो GS4 के स्टडीज़ बात कर लेते हैं। जैसे GS4 के अंदर दो टाइप्स के आते हैं, केस स्टडीज़ आते हैं और एक नॉर्मल सवाल आते हैं। नॉर्मल सवालों के अंदर तो आपको पॉइंट्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितने ज़्यादा कोड्स लिखेंगे उससे रिलेटेड उतना अच्छा होगा, और जितने यूनिक और जितने अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे फिर पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर केस स्टडीज़ होती है। केस स्टडी के अंदर जितना आप ऑर्गेनाइज रखेंगे केस स्टडीज़ को, कि मतलब आप वहाँ से ना चाहिए कि आप सिस्टमेटिकली सोचते हैं, ना कि ऐसे रैंडम सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सोच ली, ऐसे नहीं लगना चाहिए। इट शुड लुक लाइक दैट यू थिंक सिस्टमेटिकली। तो आप स्टार्ट कीजिए, पहले प्रॉब्लम स्टार्ट कीजिए, आप केस स्टडी एनालाइज, जैसे कोई केस स्टडी आई, फर्स्ट लिखिए केस स्टडी क्या मीन करती, क्या आप पूछना चाह रही केस स्टडी, आपने वो लिखा। उसके बाद आप लिखिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उसके बाद हर ऑप्शन को एनालाइज कीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद आप सारे ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज कीजिए। उसके बाद आपका वे फॉरवर्ड, कि मैं ऑप्शन ये वाला चूज़ करूँगा, क्यों चूज़ करूँगा, रीजंस होने चाहिए आपके। आप उसके अंदर डजेंट मैटर कि आप ऑप्शन कौन सा चूज़ करते हो, बस योर रीजन शुड बी साउंड एंड रीजनेबल। तो आप जो रीज़न है वो होना चाहिए अच्छा, साउंड अच्छा। तो आप रीजंस दीजिए कि आप पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो ऑप्शन लिखिए आप, वो ऑप्शन चूज़ कर लिया आपने, ये आप पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ किया, आपने पॉइंट बताया कि फर्स्टली ये ऑप्शन चूज़ करूँगा, ये रीज़न से मेरे, अगर ये कंडीशन आ गई तो मैं ये ऑप्शन चूज़ करूँगा, ये रीज़न से मेरे, तो लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए सेम तरीके से। तो केस स्टडीज़ को ऐसे अप्रोच किया था मैंने। ऑप्शनल की, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तो इसलिए चूज़ किया था कि मेरे को ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरे पर्सनल ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। मेरे को था कि मेरे को इलेक्ट्रिकल, मैंने अच्छे से पढ़ा था कॉलेज में, आई हैव स्टडीड इलेक्ट्रिकल थॉरली इन माई BTech एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट।
वो अलग बात है, मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन मेरे को उस वक्त कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरे नंबर आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आए। लेकिन ठीक है। और सेकंड रीज़न था कि मतलब GS1 GS2 3 4 मतलब GS था टोटली, जो मतलब मेरा बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था कि थोड़ी पूरे टाइम पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ऑप्शन चूज़ किया। थोड़ा टेक्निकलिटी, थोड़ा मैथ्स वगैरह वो सब मेरे को इंटरेस्ट था, तो उस सब में मैं बोर ना हूँ इस ऑप्शन को पढ़ते हुए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई दी थी। फर्स्ट पे होना चाहिए कि मार्क्स कितने आते हैं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में, लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स में मैटर करते हैं। उसके बाद आपका इंटरेस्ट कितना है, और उसके बाद सिलेबस कितना बड़ा है उस ऑप्शनल का। उसके अलावा ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, मेरी पर्सनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑप्शनल स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं एक बार तो प्रीलिम से पहले पढ़ लिया था। मतलब अराउंड अक्टूबर में मैंने, मतलब जुलाई से स्टार्ट किया था मैंने, अक्टूबर से अराउंड 4 महीने में अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया था पूरा। उसके बाद मेंस के वक्त में एक बार पढ़ पाया था पूरा अपना ऑप्शनल, और मोर एंड मोर मैं टेस्ट देता था। और मैं 2000 से लेके 2021 तक के सारे इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व कर लिए थे। तो मतलब मोर और लेस मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो गया था वहाँ से। और उसके अलावा मैं कोचिंग्स वगैरह के मॉक टेस्ट होते थे ऑप्शनल के, वो कर लेता था, तो वहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव भी कवर हो गया था मेरा ऑप्शनल। उसके अलावा बुक लिस्ट, सोर्सेज बुक लिस्ट के बारे में बताते हैं। तो मतलब मेरे को नहीं लगता प्रीलिम्स मेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है इतनी ज़्यादा। मतलब बुक लिस्ट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है, प्रिपरेशन अलग होती है, लेकिन बुक लिस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो मतलब मैं बोलता हूँ कि यू शुड स्टिक टू वन बुक। हर एक सब्जेक्ट यू चूज़ वन बुक ऑफ योर चॉइस, कोई भी हो, आप अपनी पसंद की एक बुक चूज़ कर लीजिए। ठीक है, आपने चूज़ कर ली, उसके बाद लेकिन उस बुक के साथ स्टिक कीजिए। ये कि मतलब मार्केट में हिस्ट्री की 5 बुक आती है तो मैं 5 पढ़ लूँगा, मैंने एक पढ़ ली तो अब 4 और बुक है तो मैं 4 और पढ़ लूँगा। आई शुड स्टडी ऑल दोज 5 बुक्स। दैट डजेंट वर्क, आई हैव नॉट सीन दैट वर्क। मे बी सब किसी के लिए वर्क करता होगा, मतलब मैंने मेजॉरिटी के लिए तो वर्क करता नहीं देखा है इस चीज़ को। तो मैंने जितने लोगों को देखा है, तो मतलब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक बुक चूज़ कीजिए जो भी आपको पसंद है, डजेंट मैटर कि क्या बुक है। जो भी मार्केट में पॉपुलर बुक्स है एक सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की एक बुक चूज़ कीजिए। जैसे मैंने हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम चूज़ की थी कि अब मेरे को स्पेक्ट्रम पढ़नी है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो बस मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी। आप एक बुक चूज़ कर लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। अगर ज़्यादा टाइम है ना, तो उसी बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, ना कि मल्टीपल्स बुक पढ़िए, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है आई बिलीव। तो एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए आप, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हर बुक, हर सब्जेक्ट की आप बुक चूज़ कर लीजिए एक एक। जैसे ज्योग्राफी की GC लियोंग NCERT कंपलसरी होती है जी ज्योग्राफी के लिए। 11th-12th की NCERT बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एक बुक चूज़ कर ली थी मैंने GC लियोंग, वही कंप्लीट बार बार पढ़ी थी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत चूज़ कर ली थी कि अब लक्ष्मीकांत ही पढ़नी मेरे को बार बार। एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए ओल्ड NCERTs आती हैं, वो पढ़ ली थी मैंने। वो कॉन्स्टेंटली वही पढ़ा था, बार बार वही पढ़ा था, तो उस हेल्प हो गई थी मेरे को। उसके अलावा बाकी तो मैंने अपने बाकी सब्जेक्ट के लिए मेजरली मैंने नोट्स पे रिलाई किया है, मैंने बुक्स को ज़्यादा नहीं देखा है। फिर मैंने अपने नोट्स पे रिलाई किया और वैल्यू एडिशन पे रिलाई किया है बाकी चीज़ों के लिए। मैंने कोचिंग की थी तो वहाँ से नोट्स बने हुए थे मेरे पास, तो मैंने वहीं पे काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन किया था मैंने दोनों अटैम्प्ट्स में। तो मैंने मेजरली मैं क्या करता था, वैल्यू एडिशन जो भी करता था नोट्स में ऐड कर लेता था, तो मेरे नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो गए थे, तो मैंने नोट्स पे ही ज़्यादा रिलाई किया था। और सोर्सेज बुक लिस्ट के लिए यही है कि आप पर सब्जेक्ट ही एक बुक चूज़ कर लीजिए कि मेरे को ये पढ़नी है, तो वही पढ़िए मल्टीपल टाइम्स, बेस्ट वही है। अब मेंस के आंसर कैसे फ्रेम करें, ये सवाल होता है लोगों को काफ़ी। मेंस के सवाल, मतलब मेंस के अंदर आंसर राइटिंग ही सबसे ज़्यादा होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेंस के अंदर नंबर आने का। आंसर कैसे फ्रेम करना होता है, वहाँ पे देर इज़ टाइम क्रंच, यू हैव ओनली लिमिटेड टाइम टू राइट ऑल द आंसर्स। सो आपको अपना टाइम ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होगा, आप मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख पाए कम से कम टाइम में। तो उसके लिए फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पॉइंट फॉर्मेट, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इंट्रोडक्शन से चालू किया, आपने मेंस का आंसर लिखा,
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आया सवाल, तो आपने अमेंडमेंट एक्ट का 73rd 74th का नाम लिख दिया, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया कि इसके थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर आए थे, तो आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका कोर आंसर होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन की बात करेंगे अपन, बीच में पहले कोर की बात कर लेते हैं कि कोर वाली चीज़ कैसे लिखनी होती है। उसके अंदर आप फ्लो चार्ट बना, जैसे सिंपल जैसे पंचायती राज का सवाल आया, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे कि फंक्शनल क्यों नहीं है, अच्छे से फंक्शन क्यों नहीं है, तो फंक्शनल क्यों नहीं है उसका डायग्राम बनाया, उसके पॉलिटिकल रीजंस, उसके बाद और मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है, तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए रीजंस को। पॉलिटिकल रीजंस क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है वर्क करने के लिए। ऐसे पॉइंट्स फॉर्मेट में इसके लिए पॉलिटिकल रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ऐसा कोई भी सवाल होता है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ऐसे डिवाइड कर लीजिए और उनके अंदर 3-4 पॉइंट लिखिए छोटे छोटे। बुक लिस्ट का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया था। मनोज, आप थोड़ी सी रिवाइंड कर लीजिए वीडियो और वहाँ आपको दिख जाएगा। तो आप ये कीजिए कि डिवाइड करिए कि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, इस टाइप से डिवाइड करें सवालों को, आंसर को वहाँ पे। उसके बाद पॉइंट्स लिखिए, हर के अंदर 3-4 पॉइंट्स लिखे। उसके बाद आपका पूरा आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया। और उसके बाद कंक्लूजन लिखिए लास्ट में। कंक्लूजन की वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे पंचायती राज का सवाल है तो सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन लिख दो कि सेकेंड ARC ने पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए क्या बोला था। तो आपको रिकमेंडेशंस या फिर कुछ अच्छी चीज़ें जो वे फॉरवर्ड है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो चीज़ आपको कंक्लूजन में लिखनी होगी। इंट्रो के अंदर या तो आप स्टैटिक बेसिक्स बता सकते हो जो सवाल पूछा गया है उसका, या फिर आपके पास कोई डेटा है वो बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, उससे चालू कर सकते हो। और आपको बॉडी के अंदर एक लक्ष्मी वापस से कवर कर देंगे उसके लिए। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो आपको कोर के लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली मैं तो ऐसे डिवाइड कर देता था, तो सारे पार्ट्स कवर कर देता था मैं, तो ऐसे लिखता था मैं आंसर। तो इससे क्या होता है कि मतलब पॉइंट फॉर्मेट में होता है तो आपका टाइम भी बच जाता है थोड़ा, और आप ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिख पाते हैं और क्लियर भी होता है आपका आंसर थोड़ा, कि आपने डायमेंशंस कवर कर दिए हैं सारी, और अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। तो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, ये सब यूज़ कीजिए डायग्राम आप आंसर राइटिंग में। और नहीं कर पाते तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना तो कंपलसरी, मतलब टाइम बचेगा, वरना आप ऐसे नॉर्मल लिखेंगे तो उससे आप टाइम नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत मतलब मैंने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखे थे। वहाँ से आपको फीडबैक मिलेगा, you will get a feedback and you can improve your answer writing from there. Your marks, they will do your marks and give you marks and give you feedback, and you can work upon it and improve your marks on answer writing. मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें ये सवाल होता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल, सोशल, ये सब होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। उसके अलावा आंसर पॉइंट वाइज लिखें या फ्लो चार्ट डायग्राम में लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, फ्लो चार्ट डायग्राम में भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको कैसे सूट करता है। लोगों को पॉइंट वाइज फॉर्मेट से भी नंबर आते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम से भी नंबर आते हैं। आपको कौन सा सूट करता है ये आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। और एक कैसे पता चलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखेंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पर्सनली सूट करता है। मेरा ये होता था कि मैं कॉम्प्रिहेंस लिख लेता था, मतलब जिसे मन करता था वहाँ फ्लो चार्ट लिख देता था, जहाँ पे मतलब मेरे को पॉइंट वाइज लिखना होता था वहाँ पॉइंट वाइज लिख देता था। उसके अलावा अब कुछ सवाल होते हैं कि प्रीलिम्स मीन्स इंटरव्यू में किसी सवाल का आंसर नहीं आता तो उसको कैसे आंसर करते हैं। जैसे प्रीलिम्स के अंदर तो क्या होता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, आजकल तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस which you know an answer. Don't we need to learn chapters such as financial market, money, banking, external sector वगैरह। वसुंधरा, we have to study these particular topics. For example, financial markets, money, banking, and external sector. All these topics are asked in prelims. Lot of these are asked in prelims, and sometimes they even asked in mains also. One questions they generally ask in mains, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो we have to study them। और वो तो ये पढ़ना होता है। प्रीलिम्स के अंदर तो काफ़ी सवाल आते हैं फाइनेंस कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट्स वगैरह से सवाल आते हैं प्रीलिम्स के अंदर तो हर साल, तो वो पढ़ना होता है।
आज आई एम 23.5 years old, 23 years old, 2000 born. नेक्स्ट सवाल कि अपन बात कर रहे थे कि फिल्म्स में कोई सवाल नहीं आता तो कैसे लिखे, कि आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, तो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस जो आपको फिल्म्स में नहीं आते होंगे, तो आप कैसे आंसर करेंगे उनको, कि कई सवाल होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने अभी पीछे बता दिया है, तो आप वो देख सकते हो, मैंने कवर कर दिया था GS2 के वक्त। हाँ, वसुंधरा मेंस में कम रेलिवेंट होता है, जनरली एक सवाल आता है रेयरली, वो भी कभी कभी आता है, लेकिन फिल्म्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे टॉपिक्स। तो अब मैं सारे कमेंट वाले आप एक साथ लिख दीजिएगा लास्ट में, मैं थोड़े बेसिक आंसर कवर कर देता हूँ अभी, उसके बाद आप एक साथ कमेंट में लिख दीजिए, लास्ट में वो सारे आंसर कर दूंगा आपके जो भी आंसर है सारे बेसिक कवर कर देता हूँ मैं पहले। फिल्म्स इंटरव्यू में आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप कैसे कवर करेंगे। फिल्म्स के अंदर क्या करेंगे कि आप अपनी नॉलेज यूज़ कीजिए, कि मतलब कि ये हो सकता है। फिल्म्स के क्या होगा कि बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको कन्फर्मली नहीं आते होंगे, यू विल नेवर नो आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस इन फिल्म्स, की श्योर कि मेरे को ये आता ही है, बट वो विल हैपन, यू विल एलिमिनेट 1 or 2 ऑप्शंस कि ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद आप 1 or 2 ऑप्शन से बचेंगे कि इन दोनों में से एक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा गेस वर्क यूज़ करना पड़ेगा। गेस वर्क यूज़ कैसे करेंगे, गेस वर्क यूज़ करेंगे, गेस वर्क आपको कैसे आएगा, गेस वर्क आएगा आपको कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स करेंगे वहाँ से आपका गेस वर्क इम्प्रूव होगा। तो ये गेस वर्क आपको सीखना पड़ेगा टाइम के साथ, कि जैसे सवाल जो नहीं आते हैं वो कैसे आंसर करते हैं। मीन्स के लिए होती है कि मतलब आपको कुछ सवाल बिल्कुल ही नहीं आता है, तो उसके अंदर आपको जो आता है उससे रिलेटेड वो लिख दीजिए, या फिर जनरल पॉइंट लिख दीजिए। कुछ पॉइंट होते हैं जैसे स्कीम को एफिशिएंट कैसे बनाए, तो बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज कीजिए, स्ट्रीमलाइन कीजिए प्रोसीजर्स को, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी इनकॉपरेट करिए। तो भले से ये कुछ ऐसे जर्नलिस्टिक पॉइंट होते हैं वो आप किसी भी आंसर में लिख सकते हैं मीन्स में, तो दीज थिंग्स कैन बी इनकॉपरेटेड इन मीन्स आंसर, जो इसका आपको नहीं आता है। उसके अलावा आपको जो आता है उस चीज़ का थोड़ा बहुत वो तो आप लिख ही दीजिए मीन्स की चीज़ अंदर के अंदर। बाकी इंटरव्यू के अंदर तो अगर आपको नहीं आता है तो साफ मना कर दीजिए, वहाँ पे गेस वर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता तो क्लियरली मना कर दीजिए, सर सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। वो ज़रा कुछ दिक्कत नहीं होती है उनको, ज़रा कुछ बुरा नहीं मानेंगे, ज़रा आपके नंबर कम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ साफ साफ मना कर दीजिए। उसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग करनी चाहिए या साथ करनी चाहिए, सवाल होता है लोगों का। तो तैयारी अलग अलग करनी चाहिए। मैं ये होता है कि मतलब इनिशियली आप तैयारी जब शुरू करते हैं तो आप साथ तैयारी कीजिए, कोई अलग अलग तैयारी नहीं करनी है आपको, सब साथ तैयारी कीजिए। बुक लिस्ट सबकी सेम होती है, आपका कंटेंट सबके लिए सेम होगा, सब कुछ आप साथ करेंगे प्रीलिम्स और मेंस सबका। उसके बाद आप फरवरी, जनरली मई एंड या जून स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होती है, तो फरवरी के आसपास से आप टोटली डेडिकेट कर दीजिए फिल्म्स के लिए अपने आप को, कि मैं फिल्म्स के लिए पढ़ूंगा, जहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है उस सब पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो उस टाइप टोटली डेडिकेट हो जाइए उस तरफ के लिए, वो चीज़ कर दीजिए आप अपना, टोटली डेडिकेट हो गए आप। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स फोकस रिवीजन कीजिए, तो वो चीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा फिल्म्स के बाद आप टोटली मेंस फोकस्ड हो जाइए, तो ये चीज़ करनी चाहिए। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। पर्सनली मैं बताता हूँ कैसे। फिल्म्स में तो आप प्रीवियस ईयर करने से आपको आइडिया लगेगा कि आप यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है, कि उनको जानना क्या होता है, व्हाट दे रियली वांट टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स। इफ तेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स व्हाट दे रियली वांट टू नो इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यू, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर पेपर करने से, क्योंकि सिलेबस इनफाइनाइट है। आपको वहीं से देख के पता चलेगा कि यूपीएससी पूछना क्या चाहती है, तो आप वहाँ से देखिए, पूछिए, देखिए वो सवाल, और उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जो आप जिस डायरेक्शन में यूपीएससी पूछती है, तो वो पूछिए, वो करिए। फिल्म्स में तो ऐसे हेल्प होती है। मेंस के अंदर थीम्स रिपीट होती है, बहुत ज़्यादा थीम्स रिपीट होती है। आप GS1 GS2 3 उठाइए, सिक्योरिटी की उठाइए सवाल, इकोनॉमिक्स की सवाल उठाइए, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हल ऑलमोस्ट एक ईयर छोड़ के अगले ईयर सवाल आता है, सेम थीम पे। पॉवर्टी पे सवाल आते हैं, सिक्योरिटी के अंदर टेररिज्म या फिर सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर सवाल आते हैं, तो ऑलमोस्ट थीम रिपीट होती है। मैंने क्या किया था 2013 2014 16 से लेके 22 तक के सारे मेंस के आंसर क्या किए थे, लिख लिए थे।
तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई थी कि वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प हुई थी कि मतलब मेरे को कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, आंसर कैसे लिखने होते हैं, यूपीएससी में आंसर कैसे लिखने होते हैं। और यूपीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि सवाल समझना, बोलना क्या चाह रहा है और वही लिखना। मतलब सवाल हमेशा ध्यान रखना कि कई सवाल ऐसे होते हैं कि लगते ईजी हैं कि ठीक है ये पूछा है कि ये लिखना है, लेकिन आप रियली में कुछ पूछा और होता है और आपको लिख और देते हैं और आपको तो लगता है कि मैंने सही लिखा है, लेकिन सवाल में कुछ और पूछा होता है। सवाल है क्वेश्चन है समथिंग डिफरेंट एंड यू रोट समथिंग डिफरेंट, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे फिर अगर इफ़ यू रोट समथिंग डिफरेंट। If you only write those things which are asked in question, then only you will get marks. So this thing need to be kept in mind. तो ये चीज़ भी हेल्प हो जाती है, प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा और आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सही समझा सवाल नहीं समझा, मैं आंसर राइटिंग सही किया नहीं किया, तो सब चीज़ में हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से। तो प्रीवियस ईयर आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है ना, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड 2014 से सारे प्रीवियस ईयर मेंस के आंसर आप लिख लीजिए एक बार, चारों GS 1 2 3 4 या आंसर ही लिख लीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू। हाँ, उसके अलावा इंटरव्यू की बात कर लेते हैं अब। इसके अलावा एक कंटेंट कैसे इकट्ठा करते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं वो बात कर लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू पर बात करेंगे अपन। कंटेंट के लिए बात जो होती है कि मैंने क्या किया था कि मैं तो क्या करता था कि मैंने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली। रेगुलरली एक न्यूज़पेपर की बात आ जाती है, उस पर बात कर रहे थे कि रेगुलरली आप एक कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, द हिंदू उठाइए, इंडियन एक्सप्रेस उठाइए एंड रीड रेगुलरली। रेगुलरली पढ़ना है न्यूज़पेपर, ये हैबिट में डाल लीजिए, रेगुलरली पढ़ना है न्यूज़पेपर। तो मैं क्या करता था, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता था, वहाँ से डेटा आता था, देयर वाज सम डेटा इन दैट आई यूज़ टू कलेक्ट दोज डेटा। जहाँ मेरे को लगता है, मैंने प्रीवियस ईयर किए होते हैं तो मेरे को पता था कि थीम्स और कहाँ कौन सा डेटा कहाँ यूज़फुल हो सकता है, तो मैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करता था और वो एक जगह लिख लेता था। तो ऐसे मैंने सारी सब्जेक्ट का ऐसे धीरे धीरे डेटा कलेक्ट किया। इवन जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था तो वहाँ से कुछ सवाल थे थीम्स पे, तो उनसे रिलेटेड मैंने डेटा कलेक्ट किया था। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी, तो ऐसे मैंने डेटा कलेक्ट किया था, सारी मेरे पास डेटा शीट कलेक्ट हो गई थी। वहाँ पे ही मैंने कमिटीज़ की रिकमेंडेशन लिख ली थी, वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जांपल्स लिख लिए थे जो जो मैंने एग्ज़ाम में थॉरली बहुत हर जगह यूज़ किया था। मेरे को बहुत हेल्प हुई थी इस सब से। तो ऐसे मैंने वैल्यू एडिशन किया था। इवन मैंने टॉपर्स की नोटबुक भी देखी थी, वहाँ से कुछ मेरे को बेस्ट प्रैक्टिसेस या कुछ अच्छी कमेटी की रिकमेंडेशंस या फिर कुछ अच्छे लॉस ये सब मिल जाता था और मैं उससे भी कलेक्ट कर लेता था। तो ऐसे मैंने वैल्यू एडिशन किया था, तो ये सब मैंने कलेक्ट कर लिया था एक जगह। उसके अलावा बात करते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना होता है, ये रह गई थी एक बात। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो आपको रोज़ाना पढ़ना ही है। एक न्यूज़पेपर चूज़ कर लेते हैं, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो वो आपको रेगुलरली पढ़ना ही है। कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर बुकलेट्स आती है कोचिंग्स की लास्ट में, वो पढ़ लीजिए। इन मोर देन इनफ होता है वो सब मिला मिल गया। उसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड शुड लास्ट वी शुड टॉक अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन पर्सनली आई रिलाइड ऑन 2 न्यूज़पेपर। मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ने लगा था फिल्म्स के बाद, मेंस के बाद से ही आई स्टार्टेड रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स। और उसके अलावा ओपिनियन बिल्डिंग, आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर क्या चल रहा है न्यूज़ में, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। उसके अलावा आपका इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन आपके पास अपना ओपिनियन होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। जैसे इसराइल हमास वॉर चल रहा था, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्यों, बैकग्राउंड क्या है उस वॉर का, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन भी होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो ओपिनियन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं क्या करता था कि मेरे दोस्तों के साथ डिस्कस किया करता था मैं ऐसी चीज़ें। उसके अलावा मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लिया करते थे, ऐसे हमने काफ़ी सारे किया था। उससे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प हुई थी हम दोनों को ही। तो आप डिस्कशन करेंगे, मोर एंड मोर डिस्कशन करेंगे लोगों से टॉपिक्स के बारे में, तो उससे आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होगी। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब ओपिनियन बिल्डिंग, अपना व्यू वाइड रखिए कि अपना खुद का ओपिनियन बनाइए चीज़ों पे। बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान दीजिए दुनिया की, तो वो सब चीज़ें आप अपने इंटरव्यू के अंदर जाके बोलेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। इंटरव्यू का ड्रेस कोड वही होता है, लड़कियों के लिए जनरली आई हैव सीन दैट दे वेयर साड़ी, और इसके अंदर कई बार बोला जाता है कि आप मतलब अपनी ट्रेडिशनल साड़ी भी, मतलब जैसे कोई लोग साउथ से होते हैं
तो साउथ वाली गर्ल्स, साउथ से जो बिलोंग करता है, आप अपनी ट्रेडिशनल साड़ी भी पहन के जा सकते हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। बट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए उस ट्रेडिशनल चीज़ के बारे में, क्योंकि वहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। सिमिलर चीज़, आप मतलब जनरली बॉयज़ के लिए फॉर्मल फ़ाइन होता है, फॉर्मल पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम कोट पैंट पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, तो वही पहन के जाइए, पर्सनल रिकमेंड दैट के लिए। और एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब फ़र्स्ट बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि फ़र्स्ट बार बहुत डर लगता है। वहाँ अंदर आपको जाके बिठा देते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है कि आप कौन से नंबर पे आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू बोर्ड के रूम के बाहर जाके बिठा देंगे, तो वहाँ पे काफ़ी डर लगता है, पैनिक सिचुएशन होती है, आप काफ़ी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, तो डर लगता है, लेकिन अंदर जाके सब काम डाउन हो जाता है एकदम। आप फिर पता भी नहीं चलता कि आधा घंटा कब बीत गया, कब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया। वहाँ पे आपको पूरा फोकस केवल सवाल देने, आंसर देने पे होता है, तो यू वहाँ पे कुछ वरी करने की बात नहीं होती है, और वह काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। इंटरव्यू पैनल इज़ वेरी सपोर्टिव। कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब काफ़ी हार्श ऐसा होता है इंटरव्यू पैनल वगैरह। मेरे को दोनों अटेम्प्ट में, दोनों इंटरव्यू बोर्ड कोई भी मतलब बहुत ही सपोर्टिव लगा इंटरव्यू बोर्ड। दे वर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कॉर्डियल टू मी, और मैंने जिससे भी सुना है सबसे यही सुना है। तो वहाँ पे ऐसे कुछ हार्श ट्रीटमेंट नहीं होता है, आप बहुत ही कॉर्डियल ट्रीटमेंट करते हैं आपके साथ। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। आपके कोई और सवाल हो तो आप मेरे को चैट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। वसुंधरा, शुड वी प्रिपेयर मॉडल आंसर्स फॉर यूपीएससी क्वेश्चंस और बाय एंड लर्न फ्रॉम सच एनी सच कंपाइलेशन? प्रीवियस ईयर्स की बात करें, हाँ, प्रीवियस ईयर्स के लिए मतलब कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे मॉडल आंसर लिखे होते हैं, कई सारी कोचिंग की वेबसाइट है, तो वहाँ से आप मॉडल आंसर्स वहाँ से लिखे होते हैं, तो वो आंसर कर लीजिए। इवन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती है, वो भी मॉडल आंसर्स देते हैं आपको, तो वही मॉडल आंसर से अपना आंसर कंपेयर कीजिए, और मतलब वहाँ से अच्छी चीज़ें उठाइए। आप चेक करेंगे कि मैंने सही, मेरा फ्लो था, मैं जो सवाल में पूछा था मैंने वही लिखा, उसके अलावा मेरा फ्लो सही था, और मतलब मैंने कंटेंट इनफ कवर कर लिया, नहीं करा। और मॉडल आंसर में आपको कुछ कमिटी रिकमेंडेशन मिलती है, या फिर कुछ अच्छे पॉइंट मिलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस मिलती है, वो आप एडिशन कीजिए अपने आंसर्स में, तो वहाँ से हेल्प होगी। मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। सुमन चौधरी सर, डू यू मेक नोट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत? नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे लक्ष्मीकांत से, मैंने मल्टीपल टाइम्स लक्ष्मीकांत को पढ़ा था, और मेरे पास पॉलिटी के लिए अपने नोट्स थे, तो मैंने वहीं से पढ़ी थी पॉलिटी, लेकिन लक्ष्मीकांत को मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा था। बुक लिस्ट के लिए मतलब वही स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है अंशुल, आपको कहीं भी किसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लेकिन बस बात यह है, मतलब सबकी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। बस बात यह है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक से स्टिक करना है, मल्टीपल मतलब ऐसा नहीं करना है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ सब कर लूँ। आप एक पर्टिकुलर बुक चूज़ कीजिए कि आपको ये कंफर्टेबल है, आप उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम चूज़ कर ली, तो स्पेक्ट्रम को 4-5 बार पढ़ लीजिए, वो बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, 1-2 बुक एक्स्ट्रा और पढ़ने लग जाओ साथ में, तो दैट विल बी बेटर। मैंने लक्ष्मीकांत से नोट्स नहीं बनाए थे अंशुल। कृष्णा सर, कहाँ से प्रिपरेशन की थी? आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम होम ओनली, मैं घर पे ही था, घर से प्रिपरेशन की थी। आई टुक कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने घर से ही, और घर से प्रिपेयर किया था मैंने। सर, फॉर करंट अफेयर्स मंथली मे मैगजीन टिल फिल्म्स इज इनफ? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मे मैगजीन टिल फिल्म्स इनफ है, उसके अलावा ईयरली कंपाइलेंस भी आता है कोचिंग्स का, वो भी मोर देन इनफ होता है, वहाँ से भी कॉपी कॉम्प्रहेंसिव कवर हो जाता है सब कुछ। और सवाल पूछिए, किसी को कोई सवाल है?
मतलब मैंने टाइम डिवोट वसुंधरा, टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट डिपेंड्स कि उसका मार्क्स कितने सवाल आते हैं, सिंपल सा। कि जैसे मतलब जैसे वो हिस्ट्री थी, उसको मैं बिल्कुल टाइम डिवोट नहीं कर पाया था। तो मतलब मैंने एक बार पढ़ी थी, लेकिन मतलब मैंने फिर लास्ट में क्या हुआ था कि जहाँ से वर्ल्ड वॉर रिलेटेड सवाल आते हैं, वर्ल्ड वॉर से आसपास से सवाल आते हैं ज़्यादा, तो वो चीज़ को पढ़ पाया था पूरी। या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो वो पढ़ पाया था, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया था ढंग से, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिला था। तो मतलब आपका टाइम कितना डिवोट करना है पर सब्जेक्ट को, वो होना चाहिए कि कितने सवाल आते हैं सब्जेक्ट से और कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। तो सिंपली वही होना चाहिए आपका डिवोशन उस सब्जेक्ट के लिए। अल्टीमेटली मार्क्स आना आपका एम होना चाहिए, और मार्क्स जहाँ से ज़्यादा आएंगे उसको ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए। और ये चीज़ मैंने स्पेशली टेक्निकल ऑप्शन के लिए बोलना चाहूँगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल, मैथ्स, ये सारे ऑप्शन होते हैं, ये काफ़ी लेंदी होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में इनको ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, क्योंकि लेंदी होते हैं तो टाइम खाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जीएस में भी नहीं पिछड़ना है, आपको जीएस में भी इक्वली परफॉर्म करना है। तो उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, ऑलमोस्ट इक्वल टाइम बांटिए दोनों को, जीएस और ऑप्शनल को। और मतलब एक किसी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको, दोनों को साथ लेके चलना है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक को भी नेग्लिजेंस आई तो फिर नंबर कम होते हैं और फिर वहाँ दिक्कत आती है फाइनल में। आपको नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट किसी भी एक चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। फॉर मेकिंग नोट्स फॉर मीन्स फॉर इकोनॉमी एंड पॉलिटी, आप मतलब किसी टॉपर्स के नोट्स देख सकते हैं कि कैसे वो बनाए हैं उन लोगों ने, उससे हेल्प मिल जाएगी आपको मेंस और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के नोट्स बनाने के लिए। उसके अलावा पॉलिटी के अंदर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि सवाल कैसे आते हैं, थीम्स कैसी आती है। और आपको सिलेबस के टॉपिक्स पता हैं सारे पॉलिटिक और इकोनॉमिक्स के लिए, तो टॉपिक वाइज आप सिलेबस के अंदर उठाइए, टॉपिक चूज़ कीजिए सिलेबस का, और फिर उसके नोट्स बनाइए। उसकी सारी पॉसिबल डायमेंशन आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं पहले। तो इनफ सब कवर हो जाएगा, तो आप सारी डायमेंशन कवर कीजिए, वहाँ के अंदर हर चीज़ लिखिए। वैल्यू एडिशन भी साथ में कीजिए, वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के अंदर, तो वैल्यू एडिशन कीजिए साथ में। कमिटी रिकमेंडेशंस, डेटा, इवन बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये सब आपको करना है। तो आई वुड से कि पॉलिटिक इकोनॉमी के नोट्स मेंस के लिए स्पेसिफिकली, मेंस के लिए तो ये है कि आपको स्लेबस वाइज अपने नोट्स बनाइए। अगर आप नए शरीर से बनाना चाहते हैं मेंस के लिए नोट्स, तो सिलेबस वाइज नोट्स बनाइए। सिलेबस वाइज सिलेबस के पॉइंट उठाइए और उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग कि क्या क्या पूछा जा रहा है। वैल्यू एडिशन वर्क, मेरे बेसिक नोट्स तो बने हुए थे अंशुल पहले से ही, लेकिन मैंने वैल्यू एडिशन वर्क मेजरली प्रीलिम्स से मेंस के बीच में किया था। वहाँ पे मैंने काफ़ी फोकस किया था, न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट करना, टॉपर्स नोटबुक से डेटा कलेक्ट करना, तो वो सब मेजरली वहाँ मैंने मेंस से प्रीलिम्स के बीच में फोकस किया था। सवाल पूछिए, किसी को पूछना है? नहीं वसुंधरा, मत मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, मतलब मैंने अपने जो मेन नोट्स थे, कई लोग बनाते हैं शॉर्ट नोट्स और डेफिनेटली हेल्प होती है उससे रिवाइज करने में। तो मतलब आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैंने अपने मेन नोट्स ही काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रखे थे, तो मतलब मेरे को मेन नोट्स ही ऑलमोस्ट काफ़ी याद थे, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी शॉर्ट नोट्स की स्पेसिफिकली। तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। अगर आपको लगता है आपको नीड है, आपको मेन नोट्स पूरे अच्छे से याद नहीं है, आप रिवाइज नहीं कर पा रही हैं ढंग से, तो वो आप वो कर सकते हैं।
सर आईएएस के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? मतलब स्पेसिफिक सवाल पूछिए, मतलब मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हैं। मैं कुछ प्रीवियस सवालों के आंसर दे देता हूँ। इसका मैंने बता दिया है आपको, ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में डिफरेंस ज़्यादा ये होता है कि जनरली मॉक इंटरव्यू में ज़्यादा ग्रिल करते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू में ग्रिल कर भी सकते नहीं भी कर सकते। जनरली मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा ग्रिल करते हैं, काफ़ी कॉर्डियल और काफ़ी फ्रेंडली होता है इंटरव्यू को, मेन यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर जो होता है देखा है मैंने। अनीश पूछ रहे थे सर याद कैसे रखे? रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करना ही ओनली स्ट्रैटेजी होती है, याद कैसे रहेगा? बार बार रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा याद रहेगी। इस सर इस कोचिंग नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कोचिंग नेसेसरी हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कई लोग बिना कोचिंग के भी क्लियर कर लेते हैं, बट मतलब कोचिंग से थोड़ी डायरेक्शन मिल जाती है और थोड़ा कम मेहनत लगती है आपको, लेकिन आप बिना कोचिंग के भी डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। एनवायरमेंट टू बी वेरी बल्कि, हाउ टू कवर इट? बल्कि तो होता है, इन्वायरमेंट का मटेरियल ही इतना बल्कि होता है, लेकिन मतलब आपको पता है कि जनरली सवाल क्या पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट से, तो आप उसी टाइप से उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा याद रखने के लिए कोशिश कीजिए कि मतलब हर चीज़ उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर तो सारी चीज़ें कवर होती है ऑलमोस्ट, लेकिन आप प्रीवियस ईयर आपने करे होंगे तो आपको पता है कि जनरली सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट से। कोई स्पीसीज़ होगी, या फिर कोई ऐसी फाइंडिंग्स होगी, या फिर कोई जनरल नेशनल पार्क वगैरह, वहाँ से सवाल आते हैं ज़्यादा। तो आप उसी डायरेक्शन में जो पहले सवाल पूछे जाते हैं उसी डायरेक्शन में पहले उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है तो बाकी चीज़ों को कवर कीजिए। तो उस टाइप से आप कर सकते हैं इन्वायरमेंट का पूरा मटेरियल कवर, लेकिन पहले उस चीज़ पे फोकस कीजिए जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सर इफ़ यू आर रीडिंग एनी टॉपिक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, सो हाउ टू रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक? मतलब मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी चीज़ जब पढ़ रहे होते हैं ना तो आपका ध्यान होना चाहिए पेपर पे, पेपर में कैसे पूछते हो उस सवाल को। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपका माइंड अपने आप उसी हिसाब से बनेगा कि मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना कैसे है। तो यू शुड स्टडी एनी पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड ऑन व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग। अल्टीमेट एम आपका है कि आप यूपीएससी के सवाल आंसर कर पाए, तो जैसे वो सवाल पूछते हैं उसी टाइप से अपने माइंड को बनाइए कि मेरे को उसी टाइप की चीज़ें पढ़नी है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। सर व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रैटेजी? आई डिवोट 2 hours per day for revision and store option GS and then weekly test and weekly revision. It is good to go with यस वसुंधरा, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। आप डेली रिवीजन पाते हैं, डेली रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप 2 hours डिवोट करते हैं रिवीजन के लिए, स्टिल आपको लगता है कि मेरा रिवीजन इनफ नहीं है, तो आप 1 hour और बढ़ा सकते हैं। बाकी मतलब डेफिनेटली कोई इशू नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर, रिवीजन स्ट्रैटेजी के अंदर। लेकिन आप रिवीजन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा होता है। मैंने विजन से ऑनलाइन कोचिंग दी थी। पाँच मिनट और, किसी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, फिर अपन सेशन एंड करते हैं। अरिन मैंने सी सेट के लिए पहले बता दिया है वीडियो के इनिशियल में कि सी सेट के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो आप उस चीज़ को वापस से देख सकते हो, सी सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं। कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उसके अंदर भी।
many times test series questions are not as per the demand of AC, but yet we have to give tests. So how to extract the maximum test series without unwanted? अग वसुंधरा ये होता है कि मतलब कई सारे टेस्ट मतलब ज़बरदस्ती के सवाल पूछेंगे आपसे जिनका कोई सेंस ही नहीं होगा, तो आप लेकिन आपको पता चल जाता है उन सवालों का कि कौन से ऐसे सवाल है जिनका कोई सेंस नहीं है, तो उनको हटा दीजिए, उनके ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको कुछ तो पता होता है कि ये थोड़ी बेसिक इन्फो है जो मेरे को पता होनी चाहिए, तो उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपको नहीं आती है, मतलब बेसिक इन्फो जो आपको नहीं आती है, जो पूछ सकती है यूपीएससी, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। कि बाकी सारे ज़बरदस्ती टफ बनाने के लिए जो चीज़ें की जाती है, यू कैन जस्ट इग्नोर देम, यू डोंट नीड टू फोकस टू मच ऑन देम। अगर उनकी वजह से आपके टेस्ट सीरीज़ में भी कम मार्क्स आते हैं, मतलब ज़बरदस्ती अनवांटेड इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, डोंट वरी अबाउट इट, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी वो चीज़। तो आप अपनी 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 प्रिपरेशन यूपीएससी के पेपर पर फोकस कीजिए, ना कि टेस्ट सीरीज़ के फोकस पे। अरुण जायसवाल, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे को IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला था, और सेकंड अटैम्प्ट था ये मेरा, इसके अंदर मेरे को AIR 283 मिला है, और मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी वैसे आप लोगों को कोई भी सवाल हो एक्स्ट्रा, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा सब। इंस्टा आई डी है DW_Meena24 @ तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ बता दूँगा। आपको नहीं कोई स्पेसिफिक इसके बाद भी डाउट रह गया हो तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे। बाकी अभी कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिए, एक और मिनट कर लेते हैं, कोई सवाल रह गया हो तो, बाकी देन वी विल एंड सेशन। थैंक यू अरुण। चलो देन everybody, thanks for joining in, and good night and bye, and you can message me on my Instagram if you have any more specific doubts. Thank you to all.